Yes, very good afternoon, guys. So, I welcome you to yet another lecture of CA Foundation Economics. कल के पहले दिन में मैंने बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को समझाई है. उसी चर्चा का जो दौर है अब आगे चलता रहेगा. As we all know that we have started with a new chapter of CA Foundation Economics, the first chapter, that is Theory of Demand and Supply. Theory of Demand and Supply में जो हम पहला पार्ट है Theory of Demand उसे पढ़ रहे हैं, आया ना? जिसके अंदर कल हमने क्या देखा था रिवीजन के तौर पे अगर देखें, फर्स्ट वी सॉ व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड. यस और नो? डिमांड इज कॉन्स्टिट्यूटेड विथ थ्री एलिमेंट्स. व्हाट आर द थ्री एलिमेंट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट डिमांड? डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस. यस और नो? राइट. डिमांड इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ QPT, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम. डिमांड इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ QPT, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम. Then we saw that there are various determinants of demand. In various determinants of demand, out of the 6 we have discussed 2 of them. Third discussion we had started. जिसमें पहला था prices of good or price of a commodity. What happens in case of price of a commodity? How it determines demand? When the price of the product increases, demand for the product decreases. When the price of the product decreases, demand for the product increases. जब भी मार्केट में किसी चीज की, किसी वस्तु की अगर कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मार्केट में डिमांड कम होने लगती है. यस और नो? और जब भी मार्केट में उसी चीज की अगर दाम अगर बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड कम होने लगती है, और उसी चीज के अगर दाम कम हो गए तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. इट हैपन्स वाइस वर्सा. इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, इफ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस. Hence we concluded that there is inverse relationship between price of the commodity and its quantity demanded. The next heading and the point we saw was prices of related goods. Yes or no? Close that window. Prices of related goods. Now related goods are of two types. One is complementary good, another is substitute. Complementary goods are those goods where one good can be used in place of another. Yes or no? Right? Complementary goods. Yes or no? No. Right? Yes or no? No. मैं बोला yes तो yes. ऐसा नहीं. Complementary goods are those goods where one or more goods are used to satisfy a single want, or when one good is used with another. For example, tea, sugar, ink, ink pen. These are examples. These are examples of complementary goods where the usage of one good is dependent on another. Hi na? Right? Next, what we saw? Next, what we saw is substitutes. What are substitutes? Where one good can be used in place of another, it is called as substitute. Where one good can be used in place of another, it is called as substitute. Hi na? Right? Example, tea, coffee, ink pen, ball pen. Right? These are substitutes. Tiger balm, झंडू balm. Right? और क्या था एग्जाम्पल में? शर्ट एंड पैंट आर नॉट सब्स्टिट्यूट. बेटे शर्ट पहना तो पैंट पहनना भूल जाते हैं, और पैंट पहने तो शर्ट पहना भूल जाते हैं. अब तुझे पता कैसे रहता है? सब्स्टिट्यूट बता रहा हूं. राइट? सो मिल्क और मिल्क पाउडर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट. Milk and milk powder is example of substitute. So these are the examples of substitute. Then we understood what is the relationship between price of the commodity and quantity demanded of its related goods. Firstly, we saw what is the effect or relationship between price of the commodity and quantity demanded of its complementary good. When the price of the product increases, demand for its complementary good decreases. When the price of the goods decreases, demand for its complementary good increases. Hence there is an inverse relationship between the price of the commodity and quantity demanded of its complementary goods. But this is not in case of substitute. What did we see in case of substitute? If the price of the product increases, demand for its substitute increases. If the price of the goods decreases, demand for its substitute decreases. Hence there is direct positive relationship between price of the commodity and quantity demanded of its substitute. Lastly, we saw income. The next heading we saw was income. Firstly, we started discussing about general relationship between income of a consumer and its quantity demanded. Generally, किसी भी कंज्यूमर की इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में किस तरह का रिलेशनशिप है. जो हमने देखा था कि जब कभी भी किसी इंसान की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड बढ़ने लगती है, जब कभी भी इंसान की इनकम अगर कम होती है तो उसकी डिमांड कम होने लगती है. Hence there is a direct positive relationship. Hence there is a direct positive relationship between price of the commodity, income of the consumer
and its quantity demanded, because as income increases quantity demanded increases. जैसे इनकम बढ़ेगी हमारा डिमांड बढ़ेगा चीजों को लेकर, जैसे हमारा इनकम कम होगा वैसे चीजों को लेकर डिमांड हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. Hence there is direct positive relationship between income of a consumer and quantity demanded. Yes or no? यहां तक सबको क्लियर है? Yes or doubt? तो चलिए लेट्स टेक आवर डिस्कशन ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड अहेड. I hope we complete all the points by today itself. Next heading we have to see now specific relationship between income of the consumer and quantity demanded of different goods. कल हमने जो रूल देखा, the relationship between income of a consumer and its quantity demanded is of general nature. Generally what we see कि अगर इंसान की अगर इनकम बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, अगर इंसान की इनकम कम हो जाती है तो उसकी डिमांड भी क्या होगी, कम होगी. Now let's try to differentiate the goods and let's then try to understand what is the impact of changes in income on these different types of goods. अलग अलग तरह के जो गुड्स है उन सभी अलग अलग तरह के गुड्स में बदलते हुए इनकम का क्या इफेक्ट है हमें अब यहां पर देखना है, समझना है. Is it okay and fine? चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि हाउ डू वी डिफरेंशिएट गुड. अब यहाँ पे गुड्स का डिफरेंशिएशन कैसे किया गया है पहले वो समझते हैं. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ द गुड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स, then we will try to analyze the impact of changes of income on the quantity demanded of the respective classification. Is it okay? सबसे पहले गुड्स को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरी में और बदलते इनकम के साथ इन सभी हेड्स के ऊपर क्या क्या उसका इंपैक्ट है ये अभी हमें यहां पर देखना है. राइट नाउ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स. नाउ लेट्स ट्राई टू क्लासिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स. Goods can be classified as normal goods or inferior goods. How do we classify goods? Normal goods or inferior goods. What are normal goods which are not inferior goods? What are inferior goods which are not normal goods? So what is exactly normal good? What is exactly inferior good? We'll look in the next part. Right? Now the normal goods can be classified as basic goods and non-basic goods. अब ये जो नॉर्मल गुड्स है इन नॉर्मल गुड्स का हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? आइदर वी क्लासिफाई देम एज बेसिक गुड्स और आइदर वी क्लासिफाई देम एज नॉन बेसिक गुड्स. कैसे क्लासिफाई करेंगे हम उसे? बेसिक गुड्स एंड नॉन बेसिक गुड्स. सबसे पहले हम आते हैं बेसिक गुड्स की तरफ. अब एक एक टाइप समझेंगे. सबसे पहले बेसिक गुड्स समझेंगे, फिर नॉन बेसिक गुड्स समझेंगे, उसके बाद इंफीरियर गुड्स समझेंगे. राइट इन सभी चीजों को हमें एक बार अच्छे से समझना है. सभी चीजों को एक एक बार अगर हम समझ ले, वो सब समझने के बाद फिर हम आगे की तरफ रुख करेंगे. इज इट ओके एंड फाइन? चलिए. सो बेसिक गुड, व्हाट डू मीन बाय बेसिक गुड्स? गुड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल कैन बी टर्म्ड एज बेसिक गुड्स. रोटी कपड़ा मकान, आया ना? दिस आर बेसिक गुड्स. थिंग्स विदाउट विच ह्यूमन बीइंग कैनॉट सर्वाइव कैन बी कॉल्ड एज बेसिक गुड्स. Can we survive without food? Can we survive without shelter? Can we survive without clothes? No. So we cannot survive without food, clothing and shelter. So these are classified as basic goods. These are classified as basic goods. Goods which are required for living or goods of basic necessities are called as basic goods. Hi Anna? Yes or no? Then what is non-basic goods? Goods which are not required for survival but add luxuries to life. और you can say non-basic, जो goods basic नहीं है वो non-basic है. Non-basic goods can also be called as luxurious goods, like two-wheeler. If Aditya Shinde is not owning a two-wheeler, that doesn't mean he can't survive. ऐसा है क्या? मेरे पास BMW है, आदित्य शिंदे के पास नहीं है, तो इसका मतलब आदित्य शिंदे सर्वाइव नहीं कर सकता है क्या? Does it mean that? No. So that BMW bike comes in basic or non-basic? Non-basic. Can Aditya Shinde survive without food? No, he can't survive without food. So food is basic. Can Soham Diamond survive without a mobile? No. 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 No, non-basic. ये basic goods आ गए. Whatever it may be. Reality talks. ठीक है? Can one survive without a mobile? Yes. हम बिना मोबाइल के जी सकते हैं. We can survive. So we can survive without mobile
So mobile is a non-basic good. It adds a luxury. Can we survive without a air conditioner? अब जाके तो एसी देखने को मिल रहा है, जब बचपन से बड़े हुए तब तक तो घर हम किराए के घर में रहते तो एसी वैसी कुछ था नहीं. तो ऐसा मतलब ये थोड़ी वी कुड नॉट सर्वाइव दोस पीरियड. नो, वी सर्वाइव ड्यूरिंग दोस पीरियड. वी सर्वाइव्ड ड्यूरिंग दोस पीरियड, राइट? सो कैन आई से एसी इज अ नॉन बेसिक गुड? हाँ या ना? हाँ या ना? Right? Is this laptop a basic good or non-basic good? Non-basic goods. So I hope the classification between normal goods, the sub-classification of basic good and non-basic good is clear. हाँ. एजुकेशन के बिना जी सकते हैं? नहीं पढ़ लिया तो अनपढ़ गवार थोड़ी मर रहे हैं, जिंदा है ना. अब कैसा है, पहले जैसा दौर नहीं है. फूड, क्लोथिंग, शेल्टर के साथ साथ बेसिक नीड्स के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अब राइट टू एजुकेशन दिया गया. राइट टू एजुकेशन इज गिवन फ्रॉम नर्सरी. जब रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वहां पे नर्सरी से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक का एजुकेशन हर किसी स्टूडेंट के लिए फ्री देना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का राइट अब हर स्टूडेंट को मिल चुका है. दैट मीन्स वन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एजुकेशन. दिस आर नॉट स्टोन एज. हम उस जमाने में नहीं रह रहे. क्या बिना पढ़े लिखे कोई सर्वाइव कर सकता है कि इस दौर में? कोई नहीं सर्वाइव कर सकता. बोलने की बात है, अंगूठा छाप भी कुछ भी कर लेगा, आप कुछ नहीं होता बेटा. पढ़े लिखे बगैर कुछ भी नहीं आता. अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो मोबाइल नहीं चला सकते, मोबाइल नहीं चला सके तो कुछ भी नहीं कर सकते. स्नैप पे स्ट्रिक कैसे करोगे? हाँ, मजाक की बात और है. सो दीज आर नॉट द डेज, these are not the days where education is not a non-basic need. It's a basic need which is required to survive. Yes or no? Right? That is the reason why education is given so importance at your age. अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की. बेसिक गुड्स में क्या है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ. These are the primary requirements which are needed to survive. If we don't have health facilities, could we survive the COVID-like situation? Yes or no? Could we survive without health facilities? अगर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होती तो क्या हम कोविड सिचुएशन में सर्वाइव कर पाते? क्या कितने लोग, 10 करोड़ के तकरीबन लोग इन्फेक्टेड थे. Could they survive? No. Could they survive? No. I hope you remember population chapter, year of great divide. I told you about influenza. It took away 5% of India's population. 1.6 crore people died during that particular time. Those who are infected were compulsory dead. Is the same situation today? No, because survival today includes health facilities also. So वो दौर नहीं है स्टोन एज का जहां पे हम रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे हैं. We also include health and education in the primary or basic needs itself. Yes or no? Right? Next is non-basic goods. Non-basic goods के अंदर क्या क्या आएगा? AC, mobile, car, etc., etc. All the luxurious item, mobile, laptop, whatever examples you can take. These are all examples of non-basic goods. So goods for the understanding purpose are classified as normal goods and inferior goods. As normal goods and inferior goods, and normal goods are classified as basic goods and non-basic goods. Is it okay? Now let's try to understand the third type, that is inferior good. What do you mean by inferior good? Inferior good यानी क्या? Inferior goods are those goods whose quantity demanded decreases when the income of a consumer increases beyond a certain level. What do you mean by inferior goods? Inferior goods are those goods whose quantity demanded decreases when the income of a consumer increases beyond a certain level. जब कभी भी किसी इंसान की इनकम एक लेवल से आगे बढ़ने लगती है और उसके बाद अगर हम देखते हैं किसी गुड के डिमांड में अगर गिरावट आ रही है, there is a fall in the demand of a particular commodity, all such goods can be classified as inferior good. There is no inferior good as such. We are classifying the good as a inferior good. Inferior good ऐसा कुछ गुड होता नहीं है कि वो मार्केट में जाके देख लेंगे inferior good कहाँ मिलता है. तो मार्केट में inferior good कुछ भी नहीं है. It's a conceptual good. Any good can be classified as an inferior good
whose quantity demanded decreases after the increase in the income up to a certain level. एक लेवल के बाद जब इनकम बढ़ती है और अगर किसी भी गुड की अगर क्वांटिटी डिमांडेड अगर कम होने लगी, राइट, अगर किसी भी गुड की क्वांटिटी डिमांडेड अगर कम होने लगी तो हर वो चीज को हम क्या कहेंगे, इनफीरियर गुड. यस और नो, राइट. अभी थोड़ा सा शुरुआत के डेफिनेशन में कम समझ में आता है, लेकिन नीचे जैसे ही मैं आगे का पूरा पार्ट आपको पढ़ाऊंगा वैसे ही सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी. Inferior means of low status. Inferior means of low status or of low quality. When my income was 25,000, out of all the mobile brands, Samsung used to be my superior brand. For me, Samsung was to be the superior brand or the most good brand I could afford from my income. Right? My income has increased from 25,000 rupees per month to 1 lakh rupees per month. My income has increased from 25,000 rupees per month to 1 lakh rupees per month. So I'll automatically start feeling that Samsung mobiles are of inferior quality. They don't suit my status. What will be suiting my status? Apple phone, an iPhone. I am na. As the income is increasing beyond a level, what level? From 25,000 to 1 lakh rupees. डोळे उघड बा, मैं बुक्कीच खातो एकदम फिश तारे, आंखें खोल. हाँ उघड उघड. आंखें खोल बेटा, इधर से बैठा, उसको हवा बहुत लग रही, नींद आ रही है उसको. बरोबर, आज असं करतो. काय जोशी, झोपू नको बेटा, तो जोशी खास होता है एकदम, बैठा बैठा खास होता है एकदम. नाइट नाइस जोशी, राइट. हाँ मुद्दे पे आओ, चलो. अब देखो, जब मेरी इनकम 25,000 रुपए थी, आईफोन वॉज विदाउट आउट ऑफ माई थॉट्स ऑल्सो. थॉट्स की बियॉन्ड. बोले जितनी चादर है उतना पसरना चाहिए, जेवढी चादर है तेवढंच पसरायचं. तो 25,000 में आईफोन का तो नहीं सोच सकते. लेकिन जैसे ही मेरी इनकम बियॉन्ड एक लेवल बढ़ गई, my income increased from 25,000 to 1 lakh rupees. So what will I do now? I'll start demanding for iPhone. What will happen to demand of Samsung then? It will decrease. As the income is increasing beyond a level, the demand of iPhone is increasing, but what is happening to demand of Samsung? What is happening to demand of Samsung? It is decreasing. It is decreasing. Hi Anna. Yes or no? When you belong to a, let's say when your parents start as working and you belong to a middle class family, you would prefer wearing ordinary clothes. Once you qualify as a chartered accountant, once you start earning and having good packages, would you still want to buy those non-branded clothes, or would you like to buy branded clothes? You would like to buy branded clothes. So what would happen to the demand of non-branded clothes? They would decrease. Why is there decrease? Because there is increase in the income beyond the certain level. Are you getting my point? When my income was 25,000, I used to live in a 4-room apartment. I did not demand a single AC. But as I did not demand a single AC. But as my income increased, I started demanding for new things. Let's say पहले मैं 25,000 मेरा income था. So I used to adjust with cooler at my house. गर्मियों के दिनों में कूलर से काम चला लेंगे, डेजर्ट कूलर से. लेकिन अचानक से फिर मेरा प्रमोशन हो गया, माई इनकम इंक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 1 लाख रुपीज. कूलर बहुत आवाज करता है, कूलर बहुत आवाज करता है. कूलर को हटा दो, एसी को लगा दो. So as the income is increasing beyond a level, the demand for cooler is decreasing and we have started demanding for AC. But what is happening to demand of cooler? It is decreasing. Yes or no? If a person joins a company as a peon or a clerk, he is earlier happy with his bicycle. As he gets promoted to the manager or supervisor post, his income increases. So as there is an increase in the income beyond a level, what will happen? He would not demand for bike. क्योंकि क्या कहते हैं,
जैसे इनकम बढ़ता है और डिमांड होनी चाहिए। अगर पहले एक साइकिल पे था, क्लर्क से अब सुपरवाइजर बन गया, मैनेजर बन गया, इनकम बढ़ गई, तो उसने 2-3 साइकिल लेनी चाहिए। वो ऐसा करता है क्या? नहीं, वो साइकिल की डिमांड को ही कम कर देता है। क्या लेने की सोचता है फिर? बाइक। आया ना? सो व्हाट इज हैपनिंग टू डिमांड ऑफ साइकिल? इट इज डिक्रीजिंग। इज इट इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन इनकम? क्या मेरी इनकम 25,000 बढ़ने से अगर 1 लाख हो गई तो मैंने क्या हर रूम में कूलर लगा दिए क्या? नहीं है, वो कूलर को बाजू में हटा के क्या लगाया है? एसी। सो कैन आई से when there is increase in income, there is fall in the demand of these goods. So whenever, in case of any good, if there is decrease in demand due to increase in income, normal rule क्या बोलता है अपना कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़नी चाहिए। What is the basic general rule? If income increases, demand should also increase. लेकिन ऐसे जो गुड्स है जहां पे इनकम बढ़ने की वजह से उनकी डिमांड कम होती है, ऐसे हर गुड को हम क्या क्लासिफाई करेंगे? इनफेरियर गुड। तो मेरे एग्जांपल में कूलर क्या हुआ? इनफेरियर गुड। आया ना? समझ में आ रहा है क्या? इकडे लक्ष दे रे, मोबाईल मध्ये काय बघतोय तू? मोबाईल ठेव खाली। तो कूलर क्या हुआ? साइकिल क्या हुई? सैमसंग क्या हुआ? लो स्टेटस। जब वो चपरासी था तो साइकिल पे अच्छा लगता था, अब मैनेजर बन गया तो साइकिल पे आने को इज फीलिंग ऑकवर्ड। आया ना? नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग? ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। बट व्हाट इज हैपनिंग टू द डिमांड ऑफ द गुड? इट इज गोइंग डाउन, इट इज डिक्लाइनिंग। As the income increases beyond a level, the demand for cycles is decreasing, the demand for bikes is increasing. Yes or no? So what has happened to the demand for cycle? It has decreased. Income increases, demand for cycle decreases. ऐसा तो नहीं हुआ इनकम बढ़ गई तो 2-3 साइकिल ले लिए, ऐसा हुआ क्या? नहीं। तो साइकिल क्या हुआ हमारा? इंफीरियर गुड। आया ना? इनकम बढ़ गई तो 2-3 सैमसंग के फोन ले लिए क्या? नहीं है, उसकी डिमांड कम कर दी और आपने नया फोन कौन सा ले लिया? आईफोन। आया ना? Right? So whenever you give up on one particular commodity, just because there is an increase in income, you select a superior quality product. The product which you have given up can be termed as an inferior good. Yes or no? आया ना? हाँ या ना? जब आप नॉर्मल कमाते हो 5-10 हजार रुपए, तब चाइना फोन भी अच्छा लगता है, लेकिन वही कमाई अगर आपकी 1 लाख रुपए रही तो विल यू स्टिल लव टू बाय मोर ऑफ चाइना फोन? नो, यू विल फील कि ये इंफीरियर क्वालिटी का है, अब ये मेरे स्टेटस को सूट नहीं करता, सो लेट्स नॉट डिमांड चाइना फोन, नाउ आई विल स्टार्ट डिमांडिंग फॉर आईफोन्स। यस और नो? सो इज देयर चेंज इन डिमांड फॉर द चाइना फोन्स? यस। इज इट इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग? It is decreasing as the income is increasing beyond a level. So can I call China phone as inferior goods? Haya na? Shravani? Yes or no? Go and wash your face. Go. Can I call it as inferior goods? Yes or no? haya na? बेटा थोड़ा लाइट लगा दे, सबकी आंखें खुली रहे जरा, ठीक है? Is it okay and fine? Is it okay and fine? सब पे नजर रहता है मेरा, सो मजा है आके। और दोपहर में मम्मी को बोला टिफिन में एकदम लाइट लाइट दिया करो, तो मम्मी बना बना के दे रहे हो, लड्डू फिड्डू मस्त, संक्रांति के चालू है। यस सर। See, there is one more example. Yes, there is one more example. One is बाजरा, another is of wheat. एक है बाजरा, एक है wheat. कंपेरेटिवली दोनों भी फ्लोर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, बहुत फूड ग्रेन्स के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। बाजरे की रोटी होती है, खाई होगी अगर आपने तो, और गेहूं की चपाती तो हम रोज खाते हैं, राइट? सो दोनों में अगर कंपेयर करें तो ज्यादा सस्ता बाजरा है, ज्यादा महंगा गेहूं है। हाँ या ना? सबसे सस्ता बाजरा है, बाजरे से थोड़ा महंगा हमारा जवारी आती है, और सबसे महंगा हमारा गेहूं होता है, राइट? सो हम जब हमारी इनकम कम थी तो हम बाजरे के साथ चला रहे थे, परिवार का जो खाना पीना रोटी था वो बाजरे से चल रहा था। यस और नो? राइट? लेकिन जैसे ही आमदनी बढ़ गई तो वी गेव अप ऑन बाजरा, वी स्टार्टेड कंज्यूमिंग व्हीट। सो व्हाट इज बाजरा बिकम इन दिस पर्टिकुलर केस? inferior good. So whenever there is an increase in the income beyond a level and there is decrease in demand of the another commodity, that
कमोडिटी जिसकी डिमांड कम हुई है उसको हम क्या कहेंगे? इंफेरियर गुड्स. इज इट ओके? आर यू ओके विथ व्हाट इज द बेसिक गुड? जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो है बेसिक गुड. जो सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है दैट इज नॉन बेसिक गुड. और वो सारे गुड जिसकी इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड कम होती है वो कहलाए जाते हैं इंफेरियर गुड्स. क्या कहलाए जाते हैं वो? इंफेरियर गुड्स. देखो बच्चों, जब हम बेसिक गुड्स की बात करते हैं, नॉन बेसिक गुड्स की बात करते हैं, दोनों भी सिचुएशन के अंदर इनकम बढ़ने पे उनका डिमांड बढ़ेगा. क्या बोल रहा हूं मैं? इन केस ऑफ बेसिक गुड्स, इन केस ऑफ नॉन बेसिक गुड्स, इफ इनकम इंक्रीजेस, डिमांड फॉर बेसिक गुड्स, डिमांड फॉर नॉन बेसिक गुड increases. What did I say? If income increases, so will we increase the demand for AC? Yes. If income increases, will we increase the demand for cars? Yes. If income increases, will we increase the demand for mobile phone? Yes. So all the non-basic goods demand increases with the increase in income. In case of basic goods, रोटी कपड़ा मकान, इनकम बढ़ेगा तो ज्यादा कपड़े लेंगे क्या? यस. ज्यादा खाने पीने की चीजें लेंगे क्या? यस. हाँ या ना? यस और नो? Will we tend to buy more houses? Yes. As income increases, demand for basic goods also increases. So as income increases, demand for basic goods increases. As income increases, demand for non-basic good increases. But in case of inferior goods, when demand increases beyond a level, when the demand for some goods decreases, all those goods whose demand decreases will be termed as inferior goods. Yes or no? Like in case of Samsung, like in case of bicycle, like in case of China Mobile, like in case you take any example. जब कभी भी इनकम बढ़ने के वजह से, और इन केस ऑफ कूलर ऑल्सो, जब कभी भी इनकम बियॉन्ड सर्टन लेवल बढ़ जाती है, तो अगर किसी चीज की डिमांड अगर कम होती है, इसलिए नहीं क्योंकि उसकी डिमांड कम होनी है, इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति की इनकम एक लेवल के ऊपर चली गई, तो उसे नहीं पसंद घर में कूलर का आवाज हो, उसे एसी चाहिए. समझ में आया? तो कूलर क्या बन गया? Inferior good. Are we clear with the classification? Now goods may be classified as normal goods or inferior goods. Normal goods are classified as basic goods and non-basic goods. है ना आज मेरा? Basic goods या non-basic goods. अब ध्यान दो. Now let's try to understand the relationship between income and each head. हमें goods का classification समझा? Yes. Basic, non-basic, inferior. Yes, any doubt? Any doubt? Any doubt? ठीक है. अब हम समझेंगे बदलते इनकम का बेसिक गुड्स के डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट है, बदलते इनकम का नॉन बेसिक गुड्स के ऊपर क्या इंपैक्ट है, बदलते इनकम का इंफीरियर गुड्स के डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट है. देन इनकम हेड विल बी डन. What is the general rule? As income increases, demand increases. As income decreases, demand decreases. Now, special category wise, depending on the types of good, what is the impact or how income determines the demand for basic goods, non-basic goods and inferior goods. Let's start. सबसे पहले relationship between income of consumer and inferior goods. Now we all know how is the relationship. It is negative. As income increases, demand for cooler will decrease. As income increases, demand for bicycle will decrease. As income increases, demand for bajra will decrease. Yes or no? As income increases, demand for China phones will decrease. So what is happening? As income increases, demand decreases. As income decreases, demand increases. और वही इनकम कम हो जाती है तो कूलर अच्छा लगने लगता है. एसी निकालो, बहुत बिल आ रहा है, कूलर लगा लो. वही नौकरी से निकाल दिए गए कोविड सिचुएशन की वजह से, चलो भाई गाड़ी को बेच दो, फिर से साइकिल पे आ जाते हैं. आया ना? राइट. सो व्हेन इनकम इंक्रीजेस बियॉन्ड अ लेवल, द डिमांड फॉर कमोडिटी डिक्रीजेस. व्हेन इनकम डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस. सो इंफीरियर गुड्स में और इनकम में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप. बिकॉज इफ इनकम इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस. If income decreases, demand increases. Hence there is inverse relationship. Between income of the consumer and quantity demanded of its inferior goods. Am I okay?
हमें क्लियर? कैसे चल रहे दोनों? एक बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है। एक कम हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है। दे बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एरो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है। एक नीचे की तरफ जा रहा है तो पहला ऊपर की तरफ आ रहा है। दे बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एज दे बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हम क्या कहते हैं इस रिलेशनशिप को? इनवर्स रिलेशनशिप। हेंस देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप इन केस ऑफ inferior goods and income of the consumer. MCQ आता है आपको। What goods have negative relationship with income of consumer? ऑप्शन ए नॉर्मल गुड्स, ऑप्शन बी बेसिक गुड्स, ऑप्शन सी नॉन बेसिक गुड्स एंड ऑप्शन डी inferior goods. So what is the correct answer? Inferior goods. In rest of the situation we have what we have direct positive relationship. Is this okay? Is this okay? इस तरह से एमसीक्यू रहेंगे आपको। एक एमसीक्यू है आपके मॉड्यूल के एंड में। Hence there is inverse relationship between demand of inferior goods and income of the consumer. Next point, yes, please pay attention. Relationship between income of consumer and demand for non-basic good. Non-basic good में AC आया, लैपटॉप आया, बाइक आया, right? Whatsoever. So these are all luxurious goods. इनकम बढ़ने से इनकी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। इनकम कम होगी तो इनकी डिमांड कम होगी। जब इनकम 25,000 थी तो 4 कमरों के घर में एक भी एसी नहीं था। जैसे 50,000 हुई तो एक रूम में एक एसी आ गई। जैसे 1 लाख हुई और एक एसी आ गई, और 50,000 बढ़ गई तो और एक एसी आ गई। तो हर रूम में एसी करने लगे। जैसे जैसे इनकम बढ़ने लगी वैसे हर एक रूम में एसी बढ़ने लगी। So can I say as income increases, demand increases? As income decreases, demand decreases. Yes or no? Yes or no? So relationship between income of consumer and demand for non-basic good. As income increases, demand increases. As income decreases, demand decreases. Increases, increases, decreases, decreases. Increase, increase, decrease, decrease. Increase, increase, decrease, decrease. Increase, increase, decrease, decrease. So what is the relationship? Direct positive relationship. Now both the variables are moving in the same direction. Hence there is direct positive relationship between income of the consumer and quantity demanded of non-basic goods. Is it okay? Is it okay? Hence there is direct positive relationship between income of consumer and demand for non-basic goods. Now slight change we have when it comes to relationship between income of consumer and demand for basic goods. I can explain you with a very simple example. First let's have a reading, then we'll understand. Relationship between income of consumer and demand for basic goods. As the income of consumer increases, demand for basic goods increases less than proportionate the increase in the income of the consumer. क्या बोल रहा हूं मैं? As the income increases, demand for basic goods increases less than the proportionate the increase of the income of the consumer. हाँ या ना? राइट? अब क्या है लेस देन प्रोपोर्शनेट? यानी जिस प्रोपोर्शन में इनकम बदलती है उससे कम प्रोपोर्शन में बेसिक गुड्स की डिमांड बदलती है। एग्जाम्पल, मेरी इनकम 4,500 रुपए है, एज यू ऑल नो। मेरी इनकम 4,500 रुपए है। सो आई हैव 2 चपातीज एवरी डे। सो आई हैव 2 चपातीज एवरी डे। डज दैट मीन कि शिंदे जी को अगर 9,000 कमाई है तो 4 चपाती खाते हैं? डज दैट मीन? ठीक है। ध्रुव जी की कमाई 50,000 रुपए है
तो इसका मतलब क्या वो 16 चपातियां खाते हैं क्या? 15-16 चपाती। अब मद्रास बिग फैमिली, पूरा राज्य है, अब इनकी कमाई तो लाखों में है, बिग पीपल। तो मुंद्रा जी की कमाई लाखों में है, तो क्या मुंद्रा जी थाली में बैठे तो 25-30 चपाती लेके बैठते क्या? अरे अपने सबका तो ठीक है, तो मुकेश अंबानी क्या करता होगा? अब मुकेश अंबानी की कमाई इतनी है, इसका मतलब क्या मुकेश अंबानी थाली पे बैठा तो पूरा रोटियों से हॉल भर के रखता है क्या? वो बेचारा 2 रोटी खाता है ना? तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि इंसान की अगर इनकम बढ़ती है, नो डाउट द डिमांड फॉर बेसिक गुड्स विल इंक्रीज, नो डाउट द डिमांड फॉर बेसिक गुड्स विल इंक्रीज, बट डज दैट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन एज द इनकम इंक्रीजेस? नो। जो मुकेश अंबानी की कमाई 1 करोड़ से अगर 100 करोड़ हो गई, तो इसका मतलब 1 रोटी से क्या 100 रोटी खाएगा क्या? नहीं। चलो ठीक है, स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर। जहां घर में पहले गरीब आदमी के घर में 1 चपाती, मेरे जैसे गरीब पुअर फेलो घर में 1 चपाती 1 सब्जी बनती थी, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक होगा, जैसे जैसे थोड़े थोड़े दिन चलेंगे, जैसे तुम लोग हुनार लोग पास होंगे, वैसे वैसे कुछ रोटी का गुजारा हो जाएगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा तो थाली में 1 सब्जी की जगह 2 सब्जी आएगी, 2 सब्जी की 3 सब्जी आएंगी। रोज 56 भोग तो बनने नहीं, घर में बनेंगे क्या? नहीं। सो इससे हमें क्या समझ में आता है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद द लॉजिक कि मुकेश अंबानी पूरा हॉल भर की चपाती नहीं खाता? इसका मतलब क्या है कि इनकम अगर इंसान की बढ़ती है, नो डाउट बेसिक गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। इफ लेट्स से घर के किराना में, अभी मैं गरीब आदमी हूं तो मेरे घर पे 1 क्विंटल गेहूं लेकर आता हूं मैं महीने का। कितना? 1 क्विंटल गेहूं। बेटा 1 क्विंटल गेहूं 2000 रुपए का ही आता है, अब करने की जरूरत नहीं है। तो गरीब आदमी के घर पे 4500 में से 2000 का गेहूं आ रहा है। अब कल को अगर 4.5 की तंगा अगर 45,000 हो गई, दैट डजंट मीन आई विल बी टेकिंग अ होल ट्रक ऑफ इट एट माय हाउस कि चलो गेहूं का ट्रक लेके जाते हैं, इनकम बढ़ गई है। विल दैट हैपन? Will that happen? No doubt there will be increase in the demand. No doubt there will be an increase in the demand. 4.5 से तनख्वाह 4,500 से अगर मेरी तनख्वाह 45,000 हो गई, there is increase in the income 10 times. Does that mean I will increase my consumption of it 10 times? No. I will double my consumption maximum. जहां पे पहले मैं 1 क्विंटल गेहूं में गुजारा कर लेता था, अब मैं 2 क्विंटल गेहूं परचेज कर रहा हूं। So is the demand for basic goods increasing in the same proportion of the increase in the income? इनकम किस प्रोपोर्शन में चेंज हो रही है? 10 टाइम्स। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? इनकम जो है 10 गुना बढ़ रही है, तो क्या मेरी बेसिक गुड्स की रिक्वायरमेंट भी 10 गुना बढ़ रही है? बढ़ रही है? वो सिर्फ दुगनी बढ़ रही है। सो कैन आई से द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द बेसिक गुड is less than proportionate the increase in the income of the consumer? आया ना? अब स्टेटमेंट को ठीक से समझो। मेरी इनकम कितनी बढ़ी? 10 गुना। मेरी खाने पीने की चीजों की डिमांड कितनी बनी? 2 गुना। तो इनकम 10 गुना बढ़ रही है और खाने पीने चीजों की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन वो 2 गुना बढ़ रही है। तो ज्यादा फास्ट स्पीड से क्या बढ़ रहा है? इनकम। बेसिक गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन वो उतने स्पीड से बढ़ रही है क्या जितने स्पीड से इनकम बढ़ रहा था? नहीं। तो उसी को अगर ठीक तरह से सेंटेंस में लिखना है इंग्लिश में, तो हम कैसे लिखेंगे? एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, डिमांड फॉर बेसिक गुड्स इंक्रीजेस, डिमांड फॉर बेसिक गुड्स ऑल्सो इंक्रीजेस, बट less than proportionate the change in the income of the consumer. What is the proportionate change in the income of consumer? 10 times. Is it changing 10 times? No. चला तोड़ दो ना, जाओ भागो जल्दी। क्या खाएगा टिफिन में? चलो भागो पाटिल, राइट? 10 times. Is it happening 10 times? No. Is it happening 10 times? 10 गुना बढ़ रही है क्या? 10 गुना बढ़ रही है क्या? No. हाँ या ना? हाँ या ना? ना। इट इज इंक्रीजिंग ट्वाइस। सो इससे हमें क्या समझ में आता है कि इनकम बढ़ने के वजह से बेसिक गुड्स के डिमांड में बदलाव देखा जा सकता है, लेकिन यह बदलाव इनकम में हो रहे बदलाव जितना नहीं होता, इट इज लेस देन प्रोपोर्शनेट द चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आर वी क्लियर? बट इज देयर नेगेटिव रिलेशनशिप? नो। आई डिडंट से
कि इनकम बढ़ने की वजह से खाना पीना कम कर दूंगा, ऐसा नहीं। इनकम कम होने के, इनकम बढ़ने से खाना पीने का डिमांड बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना बेसिक गुड्स में बढ़ता है, सर नॉन बेसिक गुड्स में बढ़ता है। नॉन बेसिक गुड्स में जैसी इनकम बढ़ती है वैसी डिमांड बढ़ती जाती है, उसके अंदर लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज नहीं होता। आज इनकम 10,000 है तो एक गाड़ी है, कल को 10 लाख होगी तो 10 गाड़ियां होगी। तो जैसे इनकम बढ़ेगा उसके हिसाब से नॉन बेसिक गुड्स की डिमांड बढ़ती है, लेकिन बेसिक गुड्स में ऐसा नहीं होता। बेसिक गुड्स के अंदर जैसे डिमांड, जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन डिमांड उतनी फास्ट नहीं बढ़ेगी जिस फास्ट स्पीड से इनकम आपकी बढ़ती है। इसीलिए डिमांड कैसे दी गई है, लेस देन प्रोपोर्शनेट द चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आर वी ओके? अभी ओके, क्लियर है सबको? इनकम पॉइंट यहां पे हमारा खत्म होता है। इज इट ओके? देखिए, now when income was 20,000, I used to demand for 5 kgs of wheat. हर जगह पे एग्जाम्पल दे रखे हैं। When my income was 20,000, when income was 20,000, the demand for wheat was 5 kgs. The demand for wheat was 5 kgs. Now the income has increased from 20,000 to 50,000. Does that mean I double or triple the consumption of my basic needs? No. No doubt I will be increasing the consumption, but I will be increasing the consumption slightly, not in the proportion of the change in the income. So I have increased my demand from 5 kgs to 7 kgs. Is this okay and fine? Hi Anna, right? In the above given example, income has increased 150%. Income कितना परसेंट बढ़ा है? 150%. From 20,000 to 50,000, it has increased 150%. Whereas the demand for basic goods, that is wheat, has increased to 40%. There is an increase in demand of wheat, but it is 40%. So what percentage is more, 150 or 40? 150. So percentage change in income is greater than the percentage change in quantity demanded of the basic goods. So can I say the demand for basic goods changes less than proportionate the change in the income of the consumer? Yes. Hi Anna. Change in demand is less than the change in income, इसलिए हम कहते हैं लेस देन प्रोपोर्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन इंफीरियर गुड में ऐसा नहीं होता बेटा। इंफीरियर गुड में उल्टा होता है, इनकम बढ़ेगी डिमांड कम हो जाती है। वहां पे क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। इन दोनों में क्या है? डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। बेसिक और नॉन बेसिक गुड्स में कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट पॉजिटिव। दैट मीन्स एज इनकम इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, इनकम डिक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। सिर्फ बेसिक गुड्स के अंदर demand increases less than proportionate the change in the income of the consumer. Is it okay and fine? Hi Anna, right? Hence in case of basic good, demand increases less than proportionate the increase in the income of the consumer. Are we okay and fine till this point? Next point is very easy and interesting to understand. पानी दे बेटा, इसी वजह से थैंक यू। चलिए श्रेया जी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। अगला मुद्दा जो हमें डिस्कस करना है दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का क्या टेस्ट है, कंज्यूमर का क्या प्रेफरेंस है, ये भी डिमांड को जो है डिटरमाइन करता है। नाउ देयर आर वेरियस थिंग्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ओवरऑल अगर आपको बताना है, समझाना है। ओमानंद वाल नींद आ रही बेटा? नहीं आ रही ना? मुंह धो के आना, तू भी धो के आ जा। यू डोंट लुक ओके टुडे, राइट? सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो डिटरमाइन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो डिटरमाइन द डिमांड फॉर द कमोडिटी। हाउ? पसंद नापसंद अपना रहता ना, हे आवडत नाही, ते आवडत नाही, ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं। मम्मी ने कहा करेले की सब्जी बनाई है, यू आई डोंट लाइक, आई वॉन्ट पिज्जा मार्गेरिटा, ओ माई गॉड नाइस। पसंद नापसंद अपने अपने। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इफ यू हैव गिवन अ राइट टू डिमांड अ पिज्जा और करेले की सब्जी, बट ऑब्वियसली यू वुड चूज पिज्जा। व्हाई? बिकॉज यू हैव द प्रेफरेंस और टेस्ट फॉर पिज्जा ओवर करेले की सब्जी। हाँ है ना?
हाँ या ना? So this is how taste and preference impact the demand. Due to your taste and preference, what is happening to demand for करेले की सब्जी? It is declining. And demand for pizza is increasing. This is happening due to taste and preference. Earlier, पुराने जमाने में आपके अगर डैड को, बड़े पापा को, ताया को, दादा को अगर पूछो, the styling and dressing was different, retro type. आपके बड़े पापा को पूछो, अमिताभ बच्चन के फैन है बहुत, तो उनको पूछो किस तरह की ड्रेसिंग करते थे. अमिताभ बच्चन यूज्ड टू हैव बेल बॉटम्स. वो बेल बॉटम्स में बेल बॉटमा होता था, बेल बॉटमा. हाउ? एक तो ऐसी पैंट थी, समझो ऊपर से अभी यहां से पैंट है, यहां से ऐसे स्ट्रेट आगे, हाँ ऐसे आगे, इतना बड़ा बड़ा बॉटम होता था उसका, ऐसा आगे पीछे, आगे से पीछे इतना बॉटम. जैसे अपना नैरो बॉटम हम पहनते हैं ना, वैसे बॉटम इतना होता था ऐसे लंबा. देखो पिक्चर, पुरानी पिक्चर, डॉन पिक्चर वगैरह निकाल के देखो, यहां से यहां बॉटम चल रहा है ऐसा ऐसा. आप पहनोगे वैसे पैंट? आप पहनोगे बेटा? ओ बेटा पहनोगे? आप पहनोगे? विल यू वेयर? नो, कोई नहीं पहनेगा. अब उस तरह के पैंट को पहनना पसंद करेगा क्या? नहीं. अर्लियर ड्रेसिंग, जो हीरोइन थी पहले, उनकी ड्रेसिंग कैसी थी? उस तरह की ड्रेसिंग अब आप करोगे क्या? करोगे क्या? नहीं. ड्रेसिंग चेंजेस. व्हाई? बिकॉज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इज चेंजिंग. राइट नाउ वी गॉट नैरो फिट्स, स्किनी फिटिंग जीन्स. राइट, आज का यूथ जो है, आज का यूथ क्या चाहता है? स्किनी फिट जीन्स, राइट, और स्किन टाइट जीन्स. वी डोंट like those bell bottom jeans and all. So earlier when I was in college, bell bottoms were in trend. अभी की बात है, 2-4 साल पहले. और कॉलेज ऐसा मत सोचना, recent days only. So earlier there were trend for bell bottom jeans. Now we don't have trend for bell bottom jeans because अब बेल बॉटम फिर से कोई नहीं पहनता. अभी हर किसी को स्किन फिट जीन्स चाहिए, राइट. अब बेल बॉटम जीन्स दो तो लोगे क्या? नहीं लेंगे, कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि अभी ये वो टेस्ट में नहीं है. दैट इज नॉट इन टेस्ट, दैट इज नॉट इन फैशन. यू सी, है ना, जलवा, फैशन का जलवा है ना, राइट. सो वट एवर इज इन ट्रेंड इज द टेस्ट एंड प्रेफरेंस. टेस्ट और प्रेफरेंस के ऊपर बहुत से हंसी मजाक वाले मुद्दे हैं, एक एक करके हमें बात करना है. सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑल्सो डिटरमाइंस डिमांड. आपकी पसंद नापसंद भी डिमांड को इफेक्ट करती है. मुझे मान लो अगर ब्लैक कलर बहुत पसंद है, मुझे व्हाइट कलर पसंद ही नहीं है, तो मैं क्या कोई व्हाइट कलर का शर्ट, व्हाइट कलर की बाइक, व्हाइट कलर की कार खरीदना पसंद करूंगा? नहीं. माई प्रेफरेंस विल बी फॉर अ ब्लैक कलर शर्ट. हाँ या ना? इस तरह से हर किसी को अपना कोई कलर कुछ पसंद आता है, तो वो उसी चीज की डिमांड करता है जो उसकी पसंद की है. अगर उसके नापसंद हो तो वो बिल्कुल भी उसकी डिमांड नहीं करता. हाँ या ना? सो कैन आई राइटली से टेस्ट एंड प्रेफरेंस इफेक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी? यस. हाँ या ना? तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में अलग अलग पॉइंट्स है जो हमें समझना है, जिसका एक एक करके हम डिस्कशन यहाँ पे शुरू करते हैं. द टेस्ट एंड प्रेफरेंस refers to the likes and dislikes of the consumers. For example, few consumers would demand for white color cars, whereas few would like to buy a blue color car. This is nothing but difference in the taste of the consumer. जिसकी जैसी पसंद उसकी वैसी डिमांड. There are few terms which influence the taste and preference of the consumer. अभी जो पसंद नापसंद जो है, ये जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है, ये काफी सारे टर्म्स के वजह से इंपैक्ट होता है. देयर आर वेरियस टर्म्स एंड कंसेप्ट्स विच इंपैक्ट योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस. हमारी ये जो पसंद नापसंद जो है, ये पसंद नापसंद खुद की कम और लोगों की ज्यादा होती. आज ध्रुवने असा शर्ट घातला होता, प्रेम मला पण तसा शर्ट घालायचा है ना. आज मेरे क्लास में सब दोनों ऐसा वो मस्त वाला मास्क पहन के डिजाइन वाला, मेरे को भी वैसे पहनने का है. So mostly what happens are taste and preference is impacted due to some or the other thing. So what are the other concept which impact your taste and preference? आपकी पसंद नापसंद के ऊपर
किस चीज का इंपैक्ट है वो अभी हमें देखना है, समझना है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट affects the consumer demand. In case of demonstration effect, person demonstrate the use of a commodity which influences the demand for the others or other consumers to demand the same. समझने की कोशिश करो। जब हम कॉलेज में हुआ करते थे, एक पिक्चर थी, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम, प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम, हो इश्क है तू हमारा सनम। तो अगर तुमको उदाहरण देना है तो तेरे नाम पिक्चर जो ये आई थी, इसमें सबसे ज्यादा चीज जो हिट हुई थी उसके गाने से ज्यादा वो सलमान खान की हेयर स्टाइल। अगर आपको उदाहरण में डेमो में दिखाना है, इधर इधर 2 मिनट इधर आ रहे, कुछ नहीं होता। अरे बी ए स्पोर्ट कम यार, अरे कम यार, अरे कम यार रे, अरे 2 मिनट कम यार, कम कम कम, अरे शर्मा मत जल्दी आ, शर्मा मत, कमन कमन, जय जय जय, अरे जल्दी जल्दी यार, 2 मिनट, अरे हंसाएंगे सबका, अरे 2 मिनट, नहीं नहीं उसके नहीं आता, मजा नहीं आता, नहीं नहीं दायमा विमा नहीं, कम यार आ रहे जुलू बोले। तो अब सलमान खान की जो स्टाइलिंग थी एकदम डिफरेंट थी, ऐसे बाल ऐसे यहां से यहां तक ऐसे। मैं रोज ट्राई मारता था, कंगी इधर उधर, कोई यहीं से आगे बढ़ ही नहीं रहे, राइट। बहुत कोशिश करे लेकिन नहीं हो रहे। लेकिन बाकी सब जो वो देखो, ऑटो रिक्शा वाला, साइकिल रिक्शा वाला, ये वो लंबे लंबे बाल, तेरे नाम हमने किया है। ओ, ये ऐसा वाला ब्रासलेट नहीं, थोड़ा अलग है, सलमान खान जैसा ब्रासलेट, सस्ता वाला लोखंड का पहन ले रहे, तेरे नाम। तो जैसे ही वो मूवी में सलमान खान अपनी हेयर स्टाइल डेमोन्स्ट्रेट किए, राधे भैया को देख के सब काती लोग, अब्बा सलमान भाई, राधे भाई, सब लोग चालू, ए भाऊ बिल्लू बार्बर की दुकान पे सलमान भाई की जैसी कटिंग करने का है, रहीम भाई के यहाँ पे सलमान भाई की जैसे कटिंग करने का है ना। व्हाट इज हैपनिंग टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब ये हेयर स्टाइल किसी के दिमाग की है क्या? ये उन्होंने कहीं देखी है जिसकी वजह से अब वो हर कोई हेयर सलून पे जाके बोल रहा है मुझे ऐसा हेयर कट करना है ना। जैसे गजनी पिक्चर आई थी, हिज एंटायर बाल पूरा चप्पी कलर, यहां से ऐसा हो ऐसा, ये पूरा लाइन कट रखता है ऐसा। हंसी की बात ये है कि वैसा कट मैंने भी करवाया था। फोटो नहीं है बेटा, होती तो मैं शेयर करता जरूर, तुम्हारी तकलीफ मिटा देंगे। अब कल गजनी कराएंगे तुम्हारा, तुम ठहरो। तो मुझे याद है कि वो हेयर कट मैंने करवाया था और सीपीटी के दिन थे, और सीपीटी का सिलेबस होने के बाद हमारी ट्रिप गोवा गई थी। गोवा, ओ गोवा, क्या गोवा भाई हांग में आते कैसे? क्या है गोवा? हाँ बीच है। सो हम गोवा गए थे। सो गोवा के वक्त, गोवा एक सेकंड, गोवा ट्रिप गए थे, ट्रिप के वक्त मैंने वो हेयर कट करवाया था। और फिर जैसे एक शाम में एक इवेंट था, ऐसे बैठ के सब मस्ती कर रहे थे हॉल में बैठ के, अचानक मेरे सर सावरे सर मेरे बाजू में आके बैठे, और मैं उनके बाजू में आके बैठ गया। वो 2-4 मिनट 5 मिनट तक चुपचाप मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। ऑब्जर्व करे 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 और बाद में मुझे ऐसा पकड़े, मेरे सिर नीचे लेकर, लागला का बाळा तुला टाके पडले वाटते। मैंने बोला नहीं सर, इतून अशी ये हेयरस्टाइल है। फिर बोले बता पैर कैसे पढ़ू, साष्टांग डालू कि कैसे डालू? मैंने कोई जरूरत नहीं। तो ये ट्रेंड है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस।
So this is taste and preference. This is taste and preference. है ना, राइट? मान लो किसी पिक्चर में रणबीर कपूर ने कोई पूरा ब्लेजर पहन लिया, वो कौन सा गाना है? बदतमीज दिल, है ना? तो बदतमीज दिल में वो ब्लेजर ब्लैक कलर का, मैंने सब लोग बोले मुझे ऐसा ही ब्लेजर सिलवाना, भैया की शादी मैं तो रणबीर सिंह जैसे ही पहनूंगा। जैसे करीना कपूर है, वो आलिया भट्ट बोलती ना, शादी करूंगी तो एक शर्त पे, क्या? करीना वाला डिजाइनर लहंगा। अब सुहास भी बोलने लगी पापा को, मैं भी शादी करूंगी तो एक शर्त पे, करीना वाला डिजाइनर लहंगा बना के दो तो ही शादी करूंगी। शी वांट्स अ करीना वाला डिजाइनर लहंगा। नाउ ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज दे हैव सीन द डेमोन्स्ट्रेशन। कोई रणबीर सिंह का ब्लेजर चाहता है, कोई राधे भैया की हेयर स्टाइल चाहता है, कोई करीना का डिजाइनर लहंगा चाहता है, व्हाटसोएवर व्हाट मे बी। नाउ ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग ड्यू टू डेमोन्स्ट्रेशन। वी हैव सीन इट समवेयर एंड दैट इज फिट इनटू आवर आईज एंड वी वांट टू सी कि नहीं है सर। मान लो शीला आंटी है, तो शीला आंटी अपने पड़ोस, व्हाट इज दिस? नो, शीला की जवानी, आई एम जस्ट लाइक शीला आंटी मैन। तो शीला आंटी जो है अपने पड़ोसी जूली आंटी के यहाँ जाती है, तो शीला आंटी गोस टू जूली आंटी एंड सडनली जूली आंटी से शीला आंटी, अरे शीला तू आ गई? बोले हाँ। अच्छा हुआ तो आगे में तुझे कुछ बताना है। बोले बताओ बताओ क्या? तो मेरे पति ने आज इतना बड़ा एलईडी लेकर आया है, आओ आओ मैं तुम्हें बताती हूँ एलईडी कैसे चलती है। सी टेक्स द रिमोट कंट्रोल एंड, एक मिनट सुन लो रे, मजे से सुन लो। तो जूली आंटी ने रिमोट शुरू किया और रिमोट शुरू करके वो पूरी टीवी के जो कुछ भी फीचर्स है वो डेमोन्स्ट्रेट करने लगी। देख देख के सब फास्ट चलता है, एकदम स्मार्ट एलईडी है। अब हंस रहे, मतलब सबने एक्सपीरियंस किया है अड़ोस पड़ोस में। तब जूली आंटी दिखाई जा रही है, ऐसे फीचर है, वैसे फीचर है, ये है वो है। जूली आंटी ने फिर मोबाइल निकाला, एक मिनट रुक मैं तुझे मस्त बताती। बोले क्या? मोबाइल में गाना प्ले किया, जब कोई बात बिगड़ जाए। बोले 2 मिनट रुक। बोले इसका क्या? वो फिर वो जो आजकल नया आता है ना मोबाइल का, टीवी में दिखाई देता, क्या बोलते उसे हम? स्क्रीन कास्टिंग। तो स्क्रीन कास्टिंग का ऑप्शन चालू कर, देख देख मेरे मोबाइल के इसमें दिख रहा है, राइट? सो शी इज ट्राइंग टू शो ऑफ हाउ द टीवी वर्क्स एंड एवरीथिंग। शी इज डेमोन्स्ट्रेटिंग द यूज ऑफ एलईडी। अब इतने में शीला आंटी कहां शांत होने की? अब शीला आंटी गर्म हो गई, गर्म होके घर गई। अब फिर अंकल आए रात में, तो अब शीला आंटी आग बुबुल हुए वाले पूछ रहे क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। बोले खाना परोसे, बहुत सुबह से हम परेशान हैं, सुबह से काम करता है, कुछ खाने पीने के लिए है नहीं है। तो शीला आंटी बोले अब हमारे घर में रसोई तभी बनेगी जब मेरे घर में भी बड़ी एलईडी लगेगी। Now, was there any thought of demanding LED TV? Now this came due to what a demonstration Julie Aunty gave her. Yes or no? So this is what is called as demonstration effect. जब हम किसी को देखकर कुछ करने की, कॉपी करने की कोशिश करते हैं, डिमांड करने की कोशिश करते हैं, that is called as demonstration effect. Many consumers are willing to buy same product after watching TV ads which have demonstrative effects. All the commercial ads are also example of demonstration effect. मर्द होकर लड़कियों वाली फेयरनेस क्रीम, सी शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुम्हें? ये यूज करो, फेयर एंड लवली हैंडसम, मेंस एंड हैंडसम, नो लड़कियों वाली क्रीम। शाहरुख खान बोल दिए, हाँ बोल दिए रे भाई, शाहरुख खान बोल दिए नो लड़कियों वाली क्रीम। बस फिर क्या लड़के फॉलो कर रहे हैं? फिर फेयर एंड हैंडसम दो, फेयर एंड लवली मत दो, फेयर एंड हैंडसम दो। वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट। टाटा स्काई, इसको लगा डाला लाइव जिंगल आला, लाओ टाटा स्काई लाओ, लाइव जिंगल आला बना लो। देखते हो तरह तरह की एड है ना? नाउ दीज एड्स और एडवर्टाइजमेंट वी सी ऑन टेलीविजन हैव demonstration effect, all have
डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ऐसा अकेले अकेले हाथ मत हंस, कुछ है तो मुझे भी बता। ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि उस टीवी पे हम देखते हैं और टीवी में देख रहे ऐड को देखकर हमें लगता है कि नहीं यार ये चीज मुझे भी लेनी है, राइट, है ना। सो दिस इज हाउ थिंग्स गो, दिस इज कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। नेक्स्ट अगला पॉइंट है बैंड वैगन इफेक्ट। अगला पॉइंट है बैंड वैगन इफेक्ट। नाउ बैंड वैगन इज लिटिल बिट लाइक सेम, लाइक थोड़ा बहुत जो है डेमोन्स्ट्रेशन की जैसे है, लेकिन इसका इंपैक्ट अलग है थोड़ा। बैंड वैगन में हम चीज इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि किसी ने हमें दिखाई है, हम चीज इसलिए खरीदना चाहते क्योंकि हर कोई खरीद रहा है। ड्यू टू कोविड-19 एवरीवन इज बाइंग मास्क। अर्लियर आई वाज नॉट बाइंग मास्क, लेकिन सबको मास्क पहनता देखा, मैं भी क्या डिमांड करने लगा हूं, मास्क। आई गेट माई पॉइंट। यू पीपल आर कमिंग टू क्लास, लेट्स से ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैज हिज और हर टू व्हीलर। हर किसी के पास अपनी टू व्हीलर है, लेकिन संस्कृति के पास अपनी टू व्हीलर नहीं है। नाउ सबके पास टू व्हीलर है, ये देख के उसको थोड़ा और लगेगा, शी वुड आल्सो टेल फादर की पापा मुझे भी अब टू व्हीलर चाहिए, क्लास में सबके पास है मुझे भी चाहिए। नाउ दिस इज बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन यानी जनरल, ओवरऑल जनरल, हर किसी के पास है वो चीज मेरे पास भी हो, जब ऐसा हमारे मन में आता है, दैट इज कॉल्ड एज बैंड वैगन इफेक्ट। किसी के पास है वो चीज देखकर अगर तुम्हें लगता है ये चीज मेरे पास भी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इसके पास आईफोन है, मेरे पास भी होना चाहिए, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। सबके पास सैमसंग है, मेरे पास भी सैमसंग होना चाहिए, दिस इज बैंड वैगन इफेक्ट। इज दिस ओके? बैंड वैगन इफेक्ट का अगर हम थ्योरी समझे तो बहुत पुराना थ्योरी है। इसमें थ्योरी ऐसा आया था कि अमेरिका के इलेक्शन चल रहे थे, उस अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर एक पॉपुलर बैंड हुआ करता था उस वक्त का, तो उन्होंने एक अलग स्ट्रैटेजी बनाई जो आज हम देखते हैं अमित शाह के और सब प्रचार में, दैट इज रोड रैलीज, राइट। रोड रैली वगैरह जो होते हैं ना, सो दोज रैलीज एंड एवरीथिंग वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इफेक्ट सिंस देन। तो उन्होंने क्या किया, जो प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार जो था उसने क्या किया, सबसे पॉपुलर बैंड था जो बैंड था अमेरिका का, उसे एक ओपन ट्रक पे खड़ा कर दिया एक वैगन के ऊपर, और उस बैंड को प्रचार के तौर पे, रैली के तौर पे पूरे रोड से लेकर जा रहे थे। बीइंग द पॉपुलर बैंड, उसे देखकर ऑटोमेटिकली पब्लिक गैदर हो रही थी, और जैसे जैसे वो कारवां आगे बढ़ता, पीछे लोग जुड़ते जाते थे, अपने आप लोगों की भीड़ दिखने लगती थी, और बाय द टाइम वो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक बढ़ते थे, इतने लोग साथ में जुड़ जाते थे, कि ऐसा लगता था कि कितना उसे रिस्पांस मिल रहा है उस उम्मीदवार को। और इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की वजह से दैट पर्सन हु हैड अडॉप्टेड दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी हैड वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। तो इस इफेक्ट को तब से बैंड वैगन इफेक्ट बोला है, क्योंकि वो बैंड था, वो वैगन पे बैठ के ऐसा कर रहा था, इसका इफेक्ट देखा गया, इसीलिए इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, बैंड वैगन इफेक्ट। भीड़ के जैसे भीड़ पकड़े रहती ना, वैसे जैसे अपने यहाँ पे साइंस क्या करने का, साइंस क्या करने का, डॉक्टर क्या करने का, इंजीनियर, राइट। नाउ दिस इज हैपनिंग ड्यू टू बैंड वैगन इफेक्ट। हमारे परवनी में फेरी फेरी में अगर 100 किलोमीटर में देख लो, बच्चा स्कूल जाता है 95 लिया तो क्या लेगा बेटा तू, साइंस लेगा। क्या बनेगा बेटा तू, डॉक्टर बनेगा। क्या बनेगा बेटा तू, इंजीनियर बनेगा। यही चीज होती है, नॉट बिकॉज दे लाइक इट, जस्ट बिकॉज एवरीवन इज डूइंग इट, because everyone is giving preference for science, so we have to do science. This is bandwagon effect. और बेटा तुम्हें 95% अगर तुम कॉमर्स ले लो, पागल हो क्या? 95 लेकर कोई कॉमर्स करता है क्या? कॉमर्स तो 50-60 वालों ने करनी चाहिए, 95 वालों ने कॉमर्स नहीं करना चाहिए। जो 90 प्लस वाले उन्होंने ये अनुभव ले लिया होगा, रिश्तेदार कैसे कॉमर्स की तो कोई बेटा 90 तक की तो डॉक्टर बन, डॉक्टर क्या डॉक्टर बनेंगे। So this is because वो सलाह इसलिए दे रहे हैं because they are impacted due to bandwagon effect. They are impacted due to bandwagon effect. जब ओवरऑल जनरल चीज के से हमें कोई इंपैक्ट लगता है और हम लगता है कि ये करना है, that has a bandwagon effect. जैसे रिसेंटली दिल्ली में बहुत एयर पोल्यूशन होने लगा, तो अचानक से हर कोई घर में अपने एयर प्यूरिफायर लगाने लगा। एक बस्ती से दूसरे, एक घर से दूसरा घर, दूसरे घर से तीसरा घर, तीसरे घर से चौथा घर, जैसे हर एक घर में एयर प्यूरिफायर लगने लगा, हर किसी को लगने लगा कि दिल्ली में हर घर में एयर प्यूरिफायर होना कंपलसरी है। हर कोई एयर प्यूरिफायर लेने लगा, नॉट जस्ट बिकॉज शीला आंटी ने, जूला आंटी लगाया, हर कोई लगा रहा है घर में।
हर कोई एयर प्यूरिफायर लगा रहे, तो सभी एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं ना. दिस एयर प्यूरिफायर डिमांड हैज अ bandwagon effect. It has a bandwagon effect. It does not have demonstration effect. जब किसी एक व्यक्ति को स्पेसिफिकली देख के आपको लगता है कि वो चीज लेना है, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन. जनरली सब ले रहे हैं इसलिए मुझे वो चीज लेना है, दैट इज bandwagon effect. Is it okay and clear? So bandwagon, demonstration, they both impact your demand. नेक्स्ट यहाँ पे दिया है शीला आंटी और सब दिए वगैरह हैं. अब अगली बारी आती है स्नॉब इफेक्ट की. नेक्स्ट इज स्नॉब इफेक्ट. द डिजायर टू बाय और ओन यूनिक और एक्सक्लूसिव गुड्स where demand for the product is affected as people stop using because everybody else is using it. It is called as snob effect. Snob effect is inverse of demonstration and bandwagon. डेमोन्स्ट्रेशन में जब कोई चीज इस्तेमाल कर रहा है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन हमें दे रहा है, वो देखकर हम इंपैक्टेड है तो हमें वो एलईडी टीवी चाहिए, हाँ या ना. बैंडवैगन के अंदर सब लोग मास्क यूज कर रहे हैं, सब लोग एयर प्यूरिफायर यूज कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी एयर प्यूरिफायर चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए और मुझे भी मास्क चाहिए. राइट नाउ दिस इज बैंडवैगन इफेक्ट. नाउ स्नॉब इज ऑल डिफरेंट. Snob is a appeal in which you want to be unique. In which you want to be unique. As is happening in my case. I wanted to buy a two-wheeler. But I wanted to buy such a two-wheeler जो किसी के पास भी ना हो. I wanted to buy a unique two-wheeler. So the demand for BMW which I desired or which I made is due to the snob effect. Is due to snob effect. It is not demonstrative effect. It is not bandwagon effect. हर किसी के पास BMW नहीं है, मेरे पास है. So पहले से इच्छा क्या थी कि गाड़ी ऐसी होगी किसी के पास ना हो. So this is snob effect. Right? दुल्हन को रहता है शादी में, मैं ऐसा लहंगा पहनूंगी कि आज तक गांव में किसी ने नहीं पहना. इस तरह का एकदम डिफरेंट डिजाइनर लहंगा चाहिए, करीना वाला चाहिए या मनीष मल्होत्रा वाला चाहिए, वर्ड एवरेट में. फिर भांडुप का क्यों ना हो, बट डिजाइनर चाहिए. राइट. हर दूल्हा जो शादी करने जा रहा है उसको भी लगता है कि मेरा ड्रेसिंग में ब्लेजर ऐसा हो जो किसी के पास ना हो. लगता ना. मैं बहुत बार ऐसे मन में से फीलिंग आती है कि कोई चीज अगर मैं लूं, कोई वॉच लूं, कोई बाइक लूं, कोई मोबाइल लूं, ऐसा लूं कि वो किसी के पास ना हो. आता है ना ऐसा मन में इफेक्ट. तो इसे हम कहते हैं स्नॉब इफेक्ट. वी कॉल इट एज स्नॉब इफेक्ट. बहुत बार हम अगर चश्मे की फ्रेम अगर लेते हैं तो ऐसी लेने की कोशिश करते हैं हटके की ऐसी फ्रेम किसी के पास ना हो. सो दिस पर्टिकुलर हटके वाली फीलिंग, दिस पर्टिकुलर हटके वाली डिमांड इज कॉल्ड एज स्नॉब इफेक्ट. When you want to own or buy something which is different, which is not owned by anyone, like in my case, where I wanted to own a BMW bike which is not owned by anyone, this is called as the snob effect. So snob effect is different from bandwagon and demonstration. यहाँ हम किसी को देखकर नहीं, खुद एक हटके चीज लेना चाहते हैं. Are you getting my point? तो जब कभी भी मन में हो कि कोई हटके चीज लेनी है तो स्नॉब इफेक्ट की वजह से आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस को इम्पैक्ट गिरता है, हाँ या ना. ड्यू टू दैट स्नॉब इफेक्ट, कुड आई बाय रॉयल एनफील्ड बाइक? नो, क्योंकि वो सभी के पास है. Could I buy Royal Enfield bike? No. Could I buy Yamaha bike? No, because वो सबके पास है. मुझे कोई ऐसी बाइक लेनी चाहिए थी वो किसी के पास ना हो, इसीलिए फिर मैंने क्या लिया, BMW लिया. This is due to snob effect. My taste and preference is affected due to the snob effect. Is it okay? Next. यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल में BMW. अगला है वेबलन इफेक्ट. वेबलन इफेक्ट को अगर हिंदी के मुहावरे में समझाना है तो मुझे सस्ती चीजों का शौक नहीं, मुझे सस्ती चीजों का शौक नहीं. आई वॉन्ट टू बाय एवरीथिंग एक्सपेंसिव. मेरी बात नहीं कर रहा, मैं गरीब आदमी हूं. आई वॉन्ट टू बाय एवरीथिंग एक्सपेंसिव. वॉच अरमानी, ड्रेस डीजल, शूज अल्डो, वॉच रोलेक्स. हर चीज एक्सपेंसिव चाहिए. मोबाइल फोन आईफोन 12, हर चीज एक्सपेंसिव चाहिए. शीला आंटी डायमंड नेकलेस, डायमंड नेकलेस 5 लाख. नो वन 5 लाख. राइट.
सो मान लो शीला आंटी को अगर डायमंड नेकलेस लेकर दिया है, तो डायमंड नेकलेस इसलिए लेना है क्योंकि डायमंड नेकलेस बहुत महंगा है, और डायमंड नेकलेस की खुशी से ज्यादा उसको शो ऑफ करने की खुशी ज्यादा है, क्योंकि बिकॉज इट इज अ गुड ऑफ प्रेस्टीज, स्टेटस एंड सिंबल। तो मान लो कहीं किटी पार्टी में अगर शीला आंटी वो डायमंड नेकलेस पहनकर चली गई और अगर कोई लेडीज ध्यान नहीं दे रहा तो बार बार अरे शीला नेकलेस, अरे हाँ 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 डायमंड नेकलेस, यस 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 डायमंड नेकलेस, 5 लाख रुपए, हस्बैंड बाइड यस्टरडे। सो दिस इज शो ऑफ, ट्राइंग टू शो स्टेटस सिंबल। अभी तो भी कम हुआ, नया नया जब फिर बीच में ट्रेंड था आईफोन, आईफोन ले गया ऐसा, ये एप्पल यूज बर का एज अ फोटो पोज आईफोन, किसी के पास आईफोन हो तो देखो तो वो पोज देता है ऐसे कि ए मेरा फोन आने दे, फोन की फोटो आने दे, दे वांट टू शो ऑफ कि उनके पास आईफोन है, राइट। सो वो शो ऑफ करना जो है बिकॉज इट कैरी स्टेटस सिंबल। तो नॉर्मली वेबलन इफेक्ट ये कहता है जब कभी भी आपके मन में ये भावना हो कि महंगा है तो बेहतर है, महंगी चीजें चाहिए, सस्ती चीजों का मुझे शौक नहीं, मुझे महंगी महंगी चीजें चाहिए, सो दिस इज हाउ इट गोज, दिस इज कॉल्ड एज वेबलन इफेक्ट। वेर यू फील महंगा है तो अच्छा है, ड्रेस शर्ट 300 रुपीज, नो 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 नो, चीप क्वालिटी, 3000 रुपीज वेरी नाइस, ब्रांडेड। समझ में आया? तो अब जब हमें लगता है कि महंगा है तो बेहतर है, जितना महंगा तो अच्छी क्वालिटी का है, ये जो दिमाग में होता है दिस इज कॉल्ड एज वेबलन इफेक्ट। नॉर्मली हैपेंस विथ किड्स और यंगस्टर जो ब्रांडेड पहनना चाहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड पहनना चाहते हैं, तो उनके लिए ब्रांडेड महंगा है तो वही अच्छी क्वालिटी का है, नॉन ब्रांडेड है तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। सो दिस पर्टिकुलर इंप्रेशन और द टेस्ट एंड प्रेफरेंस arises due to the Veblen effect where they feel expensive है तो बेहतर है। तो इसीलिए वेबलन इफेक्ट को कैसे समराइज करेंगे, सस्ती चीजों का हमें शौक नहीं है, क्योंकि सस्ता है तो वेबलन नहीं है, महंगा है तो वेबलन इफेक्ट है। इज इट ओके एंड फाइन? आया ना, समझे क्या वेबलन, राइट? इट इज नेम्ड आफ्टर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थ्योरिस्ट वेबलन। द वेबलन इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड इन हिज बुक द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास। लेजर क्लास है ना, लग्जरियस क्लास के बारे में उन्होंने बुक लिखी है, उसके बारे में वेबलन इफेक्ट को समझाया गया है। वी बाय गुड्स नॉट बिकॉज इट कैरी सुपीरियर क्वालिटी बट फॉर अ रीजन इट कैरीज अ हायर प्राइस एंड स्टेटस सिंबल। मुझे सस्ती चीजों का शौक नहीं। अल्टीमेटली a OnePlus phone of 40,000 is same like a iPhone 12 phone. Ultimately both are phone, दोनों भी फोन है, दोनों में भी क्वालिटी है, दोनों में भी कैमरा है, दोनों में भी स्पीड है, लेकिन अल्टीमेटली स्टेटस सिंबल किस में है? आईफोन में है। तो वेबलन इफेक्ट के हिसाब से अगर डिमांड करोगे तो क्या डिमांड करोगे? समझ में आई? सो दिस इज हाउ वेबलन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एंड बैंडवैगन इफेक्ट, these are all concept which affect the taste and preference of a consumer. क्या आप अग्री करते हो जितने पॉइंट मैंने बताए इन सभी की वजह से हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस बदलता है? हाँ या ना? यस और नो? राइट? सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर अफेक्टिंग द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। यस, अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गया। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस का पॉइंट खत्म होता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस से हमें क्या समझ में आता है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ये पॉइंट्स हमें ये समझ में आता है जैसे हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, जैसे हमारी पसंद नापसंद है उसके हिसाब से डिमांड रहेगी। अगर आपको पसंद है तो डिमांड करोगे, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप डिमांड नहीं करोगे। पसंद नापसंद बहुत सी चीजों से इफेक्ट होती है, जो है डेमोन्स्ट्रेशन, बैंडवैगन, वेबलन एंड स्नॉब इफेक्ट। इज इट ओके ऑल द इफेक्ट्स? अगला पॉइंट आता है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। व्हाट इज द टाइम? हाँ 4:50, ठीक है, ये वाला पॉइंट पूरा कंप्लीट करेंगे। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। नाउ कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन कैन बी रिगार्ड्स टू 3 थिंग्स। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो 3 चीजों को लेकर रह सकती है। एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस, एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस, एक्सपेक्टेशंस अबाउट इनकम, एक्सपेक्टेशन अबाउट इनकम, एक्सपेक्टेशंस अबाउट सप्लाई ऑफ द कमोडिटी. So the consumer expectations have to be studied under 3 heads, that is expectation about price, expectation about income and expectation about supply. Now let's try to understand the expectations or consumer expectations one by one. ठीक है? अभी ये जो डिटर्मिनेंट्स देख रहे हो ना आप, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बहुत डिटेल में है। आपके 12th में जो मैं बता रहा था ना आपको,
वहां पे हेडिंग है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, हेडिंग में पॉइंट है कंज्यूमर, राइट, चल रहा है रहने दो, राइट। सो जो पॉइंट है वहां पर, दैट पॉइंट इज विथ इनकम ऑफ कंज्यूमर। सो इनकम ऑफ कंज्यूमर का जो पॉइंट है वहां पे सिर्फ उतना ही है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनकम इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, इनकम इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, इनकम डिक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। बाकी आगे का जो क्लासिफिकेशन देखा हमने इंफीरियर वगैरह, वो आपके 12th स्टैंडर्ड में नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा था जो आप अभी पढ़ रहे हो बहुत डेप्थ में जा रहे हैं हम, इतना डेप्थ में 12th नहीं, इसके स्टार्ट में ही सब खत्म हो गया। अभी इतना जितना देख रहे हैं इसको 2 लाइन में समराइज करके डिटर्मिनेंट्स खत्म किए वहां पे, राइट। तो जब आप 12th का टेक्स्ट बुक देखोगे चैप्टर होने के बाद, मैं जानबूझ के आपको 12th की टेक्स्ट बुक बताऊंगा, तो आप खुद देख लेना कितना इजी जाता है या डिफिकल्ट जाता है, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्सपेक्टेशंस। नाउ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस। नाउ कंज्यूमर कैन एक्सपेक्ट मेनी थिंग अबाउट प्राइस। एज अ कंज्यूमर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीजों की आने वाले दिनों में दाम बढ़ेंगे, या फिर हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीजों के आने वाले दिनों में दाम कम होंगे, आने वाले दिनों में दाम बढ़ेंगे, आने वाले दिनों में दाम कम होंगे। दीज आर डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस वी आर हैविंग रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स। लेट्स से अभी मैं मेरे बाइक में पेट्रोल जो है फिल करने जाने वाला हूं, तो फिर मैंने सोचा कि 100 रुपए का पेट्रोल अभी के लिए मैं डाल लेता हूं मेरे गाड़ी में, बाइक में 100 या 500 रुपए का पेट्रोल डालकर टंकी फुल कर लेता, नई नई बाइक है, 500 रुपए का पेट्रोल फिल करता हूं और फिल करके रखता हूं। लेकिन जाने से पहले अचानक मैं मेरे मोबाइल पे न्यूज देखता हूं कि जहां पे प्राइम मिनिस्टर हैज डिक्लेयर्ड दैट 2 दिन के बाद पेट्रोल के प्राइसेस में 20 रुपए की गिरावट होगी पर लीटर। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट प्राइसेस ऑफ पेट्रोल will decline, the prices of petrol will decline in next 2 days. When the consumer is expecting a fall in prices in next 2 days, what will happen to the present demand? Will I increase my present demand or will I decrease my present demand? I will decrease my present demand. जहां मैं 500 रुपए का पेट्रोल भरने वाला था, अब मैं सिर्फ 2 दिन में जितना लगता है उतना पेट्रोल भरूंगा। फिर मैं क्या सोचता हूं, अभी के लिए 100 रुपए का पेट्रोल भर लेते हैं, 2 दिन गाड़ी चला लेते हैं, 2 दिन के बाद 20 रुपए जब पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा, फिर उसके बाद टंकी हम फुल कर लेंगे। तो इसी को अप्लाई करो। जब जनरल कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करता है कि आने वाले दिनों में जो चीज हम खरीदना चाहते हैं उसके दाम कम होंगे, तो प्रेजेंट डिमांड उसमें कम होती है। व्हेन यू एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू डिक्रीज इन फ्यूचर, यू डिक्रीज द करंट डिमांड। अब मान लो अभी गर्मी का सीजन चालू है, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब पीक गर्मी का सीजन होता है तब एसी के दाम बहुत ज्यादा होते हैं, और जब विंटर का सीजन शुरू होता है, रेनी सीजन और आगे शुरू हो जाते हैं, तो वहां से आगे डिस्काउंट एसी के ऊपर मिलने लगते हैं। तो अभी समर का सीजन है और कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि जैसे ही अगले महीने रेनी सीजन स्टार्ट होगा, एसी के दाम कम हो जाएंगे। एसी के दाम क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अगर एसी के दाम कम हो गए तो हमें डिस्काउंट के ऊपर एसी मिल जाएगा, राइट। सो इज एक्सपेक्टिंग दैट एसी प्राइसेस विल फॉल इन फ्यूचर। सो विल ही बाय टुडे और विल ही बाय इन फ्यूचर? ही विल बाय इन फ्यूचर। सो व्हाट विल हैपन टू करंट डिमांड? करंट डिमांड विल डिक्रीज। जहां मैं 500 रुपए का पेट्रोल भरने वाला था, अब मैं कितना भर रहा हूं? 100 रुपए का। वाई? बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइसेस विल फॉल इन फ्यूचर। लेट्स से आज 70 रुपए पेट्रोल का दाम है, आज 70 रुपए पेट्रोल का दाम है, 2 दिन के बाद वो 100 रुपए होने वाला है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल विल इंक्रीज टू 100 इन नेक्स्ट 2 डेज। तो पहले मैं 100 रुपए का पेट्रोल भरवाने वाला था, न्यूज पे मैंने देखा कि अभी 2 दिन के बाद पेट्रोल 100 रुपए हो रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग की संभावना बताई जा रही है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2 दिन के बाद पेट्रोल 100 रुपए हो जाएगा। तो फिर अभी जाके 100 रुपए भरने में ज्यादा भलाई है या 1000 रुपए भर के टंकी फुल करने में ज्यादा भलाई है? टंकी फुल करोगे ना, आया ना। सो व्हेन यू एक्सपेक्ट दैट प्राइसेस विल राइज इन फ्यूचर, व्हेन यू एक्सपेक्ट दैट प्राइसेस विल राइज इन फ्यूचर, यू विल इंक्रीज द करंट डिमांड, यू विल इंक्रीज द करंट डिमांड। अगर आपको लगा है कि 2 दिन के बाद प्याज जो आज 20 रुपए किलो मिल रहा है, कल को 50 रुपए मिलेगा, मम्मी क्या करती है? थैला भर के प्याज उठा के ला लेती है, आया ना। आज 100 रुपए प्याज मिल रहा है, 2 दिन के बाद पता चला कि नया प्याज मार्केट में आने वाला 50 रुपए में प्याज हो गया, तो मम्मी अभी 2 दिन के लिए जितना चाहिए उतना प्याज लेकर आएगी, आधा किलो ले लो। समझ में आ रहा है? तो जो कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन है प्राइस को लेकर, जहां उसे लग रहा है कि आने वाले में दिनों में प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, उसके हिसाब से डिमांड बदलता है। अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करता है कि आने वाले दिनों में प्राइस अगर बढ़ने वाले हैं, तो करंट डिमांड को क्या करता है? बढ़ा देता है। इफ यू एक्सपेक्ट द प्राइसेस विल राइज इन फ्यूचर, ही विल इंक्रीज द डिमांड। अगर उसे लगता है 20 रुपए का प्याज 100 रुपए हो जाएगा, व्हाट ही विल डू विद द डिमांड फॉर ऑनियन?
द डिमांड ऑफ ओनियन विल इंक्रीज। अग्री 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 और नॉट, राइट। और वहीं आज 100 रुपए में प्याज मिल रहा है, उसे लगता है 2 दिन के बाद ये 50 रुपए हो जाएगा। सो व्हाट यू विल डू टू द डिमांड ऑफ ओनियन? विल ही इंक्रीज द डिमांड ऑफ ओनियन? विल ही डिक्रीज द डिमांड ऑफ ओनियन? ही विल डिक्रीज द डिमांड ऑफ ओनियन। अभी ओके, एक्सपेक्टेशंस अबाउट पॉइंट प्राइस वाला पॉइंट समझ में आया, राइट। इसीलिए वहां पर दिया है, क्या दिया है? व्हेन द फ्यूचर प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, व्हेन द फ्यूचर प्राइसेस आर expected to increase, what is happening to demand? Increases. What is happening to the present demand? Increases. प्याज कल को 100 रुपए हो जाएगा, जो आज 50 रुपए है, तो आज ज्यादा प्याज खरीद लो। तो आज के डेट में डिमांड क्या हो रही है? प्याज की बढ़ रही है। वही प्याज जो आज 100 रुपए मिल रहा है, 2 दिन के बाद 50 रुपए में मिलेगा। प्राइसेस आर डिक्रीजिंग। सो व्हाट इज हैपनिंग टू द प्रेजेंट डिमांड ऑफ ओनियन? इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? अभी हम 2 दिन के लिए जितना प्याज लगता है सिर्फ उतना ही डिमांड करेंगे, और कम दाम होने के बाद फिर डिमांड बढ़ाएंगे। समझ में आई बात? So it is decreasing. So expectations. Now when we are talking about expectations about price, we are not talking about current prices. क्योंकि current prices में अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, और प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। दिस इज द करंट सिचुएशन। ना एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है फ्यूचर, भविष्य में प्राइस में क्या चेंजेस है उसके बारे में कंज्यूमर के क्या एक्सपेक्टेशंस है। सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस। When we say expectations, we are talking about future prices. भविष्य में अगर लगता है कि चीजों के दाम बढ़ेंगे तो हम वो चीजों का कंजम्पशन ये टाइम पे बढ़ा देते हैं, प्रेजेंट में। हाँ या ना? अगर कोई चीज महंगी होने वाली है तो आज ही उसको खरीद लो। समझ में आई बात, राइट। और कोई चीज भविष्य में सस्ती होने वाली है तो उसको आज खरीदने में समझदारी है क्या? नहीं। इसीलिए when you expect the prices to rise, demand increases. When you expect the prices to decrease, demand decreases. Now this demand is present demand. This demand is present demand. Yes or no? Agree or not? Right? Next point यहां पर हमें देखना है। देखिए वही पेट्रोल का जो दाम का जो मैंने बताया कि भाई 86 रुपीज अगर पेट्रोल है, ये एक्सपेक्ट की 2 दिन के बाद पेट्रोल 100 रुपए हो जाएगा, तो पेट्रोल महंगा होगा। तो पहले हम 5 लीटर लेने वाले थे, अब हम कितना लीटर ले रहे हैं? 10 लीटर। अब हम कितना ले रहे हैं पेट्रोल? 10 लीटर। और सेकंड केस के अंदर अगर हमें लगता है कि 2 दिन के बाद पेट्रोल 65 रुपए हो जाएगा, तो अभी हम कितना लेंगे? जहां 10 लीटर 5 लीटर लेते थे 86 रुपीज में, अब हम कितना ले रहे हैं? 2 ही लीटर ले रहे हैं। हाँ या ना? व्हाट हैपेंस इन नॉर्मल सिनेरियो ऑफ प्राइस? व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। सो हाउ इज द रिलेशनशिप? इनवर्स रिलेशनशिप। उस वक्त यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस में कैसा हो रहा है? इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ इंक्रीज, डिमांड विल इंक्रीज. If you are expecting a decrease, demand will decrease. They both are moving in the same direction. Hence there is a direct positive relationship between expectations about price and quantity demanded of the goods. अभी clear? ये हुआ पहला point, expectations about price. Second, expectations about income. Expectations about income दो हो सकता है। कंज्यूमर को यह लगता है कि आने वाले दिनों में उसकी इनकम बढ़ने वाली है, बड़ी नहीं, बढ़ने वाली है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम। एम आई नॉट टॉकिंग अबाउट इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम, बिकॉज वी नो इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, इनकम कम होती है तो डिमांड कम होती है। व्हाट वी आर टॉकिंग हियर इज एक्सपेक्टेशंस अबाउट द इनकम। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मेरी इनकम बढ़ेगी, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मेरी इनकम घटेगी। इनकम बढ़ेगी, इनकम घटेगी। अभी क्या? नहीं। कब? भविष्य में। मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा काम किया है, एसपीसी में मुझे प्रमोशन मिलेगा। अब प्रमोशन के साथ मेरी 4,500 रुपए की तनख्वाह 45,000 रुपए हो जाएगी। हुई नहीं है, होगी, लेकिन उम्मीद लगता है कि हो जाएगी। हाँ, पार्टी पार्टी। सो उम्मीद है, उम्मीद यह है कि मेरी इनकम बढ़ेगी। मान लो कोई वर्कर कोई फैक्ट्री में काम करता है, उसका अभी तक प्रमोशन हुआ नहीं है, लेकिन साथ में जो काम करने वाले लोग हैं उनका कहना है कि मालिक आपसे बहुत खुश है, वो आपको प्रमोट करने वाले हैं और अब आप मैनेजर बनोगे, टीम लीडर से आप मैनेजर बनोगे। तो उसे मालूम है कि आने वाले दिनों में उसका प्रमोशन होने वाला है, वो टीम लीडर होने वाला है। उनकी बीवी है शीला आंटी। अब वो घर जाते हैं, घर जाने के बाद शीला आंटी बोलती है टीवी थोड़ा खराब हो गया,
मैं सोच रही थी कि छोटा सा एक 32 वाला एलईडी ले लेंगे। अरे 32 क्या, अब हम 100 इंच वाला लगाएंगे। मेरा प्रमोशन होने की उम्मीद है। there is a possibility that I might be promoted to the manager post and might have a increase in the income. इनकम अभी तक बढ़ी नहीं, उससे पहले चालू तैयारी, उससे पहले इनकम की खर्च करने की तैयारी चालू हो जाती है अपनी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इनकम बढ़ी है क्या, नहीं, अभी तो प्रमोशन का कुछ पता नहीं, उससे पहले 100 इंच की लगा ले बेटा, राइट। तो 32 इंच की क्या, अभी 100 इंच की अपन टीवी लगाएंगे, क्योंकि सोचा, सुनने में आया है कि मेरा प्रमोशन होने वाला है। और वही शीला आंटी के पति की अगर नौकरी जाने वाली है, उसको पता चला कि कोविड की सिचुएशन में कंपनी सब लोगों को निकाल रही है और कहीं ना कहीं उसकी भी नौकरी जाने वाली है, घर जाता है, तो शीला आंटी बोलती मैं सोच रही हूँ कि 32 इंच का एलईडी लगाते हैं। चुप करो, भाग्यवान है वो भी, टीवी बेच दो कहीं पे, अब मेरी नौकरी जाने वाली है। गई है क्या, नहीं, लेकिन उम्मीद है कि जाएगी तो और इनकम कम होगी। तो अगर ये उम्मीद है कि इनकम बढ़ने वाली है तो हम अभी से डिमांड बढ़ाना शुरू कर दे। अभी तो इनकम बढ़े नहीं, उसके पहले खर्चे के खौफ चल होता है ना, राइट। दिस इज हाउ वी बिहेव, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। इकोनॉमिक्स इज ए साइकोलॉजिकल साइंस, इसे ह्यूमन साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल साइंसेस के अंदर पढ़ा जाता है। कि जो तुमको समझा रहा हूं ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसलिए इसमें इंटरेस्ट आता है। ये हमारे दिमाग का ही सोच है सब कुछ। अगर हमारी इनकम बढ़ने वाली है, अभी तो बढ़े नहीं, उसके पहले चालू, मैं ऐसा खर्चा करूंगा, मैं वैसा खर्चा कर, पहले इनकम तो बढ़ने दे। बट व्हाट इज हैपनिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इनकम माइट इंक्रीज इन फ्यूचर, so what we are doing to the current demand, we are already increasing the current demand, yes or no, right? income might decrease in future, आगे चल के नौकरी निकलने वाली है, नौकरी जो है आपको निकाल दिया जाएगा नौकरी से, लेकिन आज से ही प्रिकॉशन ले रहे, खर्चा कम करते, डिमांड कम करते, ताकि सेविंग्स हो, कल को नौकरी निकल गई तो फिर अपने पास कम से कम कुछ ना कुछ गुजरा करने के लिए पैसा होना चाहिए। when you expect the income to rise in future, you increase the demand. when you expect the income to fall in future, आने वाले दिनों में नुकसान लगने वाला, ये तुम्हें पता है, तो तुम अभी का डिमांड बढ़ाओगे या कम करोगे? डिमांड कम करोगे, पैसे बचाओगे और सेविंग्स करने की कोशिश करोगे। अग्री? इसलिए यहां पर क्या दिया है, फ्यूचर इनकम इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, फ्यूचर इनकम डिक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस। नाउ दिस डिमांड इज प्रेजेंट डिमांड वी आर टॉकिंग अबाउट, यस और नो? अभी तो इनकम बढ़ी नहीं, उसके पहले डिमांड बढ़ा दिए, अभी इनकम घटी नहीं, उससे पहले डिमांड कम कर दिए। दिस इज एक्सपेक्टेशंस अबाउट इनकम। जैसे अभी नीचे डिमांड फॉर साड़ीज, शीला आंटी के केस में पति की कमाई 10,000 रुपए है, तो 2 साड़ी की डिमांड कर लिए। पति ने कहा प्रमोशन होने वाला है, वाह 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 वाह, 25,000 कमाई होने वाली है मंथली, ठीक है, मुझे अब 5 साड़ियां चाहिए, 2 साड़ियों से मेरा काम नहीं चलेगा, अब तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है, मुझे 5 साड़ियां लेकर दो। और वही शीला आंटी को आगे बोला कि मोहतरमा मेरे पास एक बुरी खबर है, कोविड की वजह से मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है, आने वाले दिनों में अब मेरे पास नौकरी नहीं रहेगी। तो शीला आंटी बोलती कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझती हूँ, मैं घर का गुजारा कर लूंगी, 5,000 रुपए तुम्हारी इनकम हो सकती है, तो लेट्स से कि एक साड़ी से ही गुजारा कर लेंगे, आप मुझे एक साड़ी नहीं खरीद कर दो। नाउ दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द एक्सपेक्टेशन इन द चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यस और नो? अग्री और नॉट? हाँ या ना? लास्ट पॉइंट, expectations about supply. Last point, please pay attention, please be patient, even it takes a lot of effort to stand here and talk continue for 2 hours. Expectations about supply. तुम लोग तो खाली सुन रहे हो, मेरा सोचो नॉन स्टॉप मैं बात करता हूं, नॉन स्टॉप 2 घंटे। नॉन स्टॉप बात करना इतना आसान नहीं है, यहाँ खड़े रहकर देखो, नॉन स्टॉप डिलीवर करो, मैं 2 और 2 घंटे ले सकता हूँ, लेकिन उतनी कैपेसिटी अब तुम्हारी डेवलप करनी बाकी है, करेंगे धीरे 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 धीरे, तुमको भी पंप करेंगे, जनवरी हो रहे ना, फिर फरवरी में जलवा दिखाएंगे तुमको, ठीक है? एक्सपेक्टेशंस अबाउट सप्लाई। नाउ व्हाट इफ द कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग अबाउट सप्लाई? रिसेंटली एक न्यूज में तुमने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में रातों रात नमक की चोरी होने लगी दुकान से, सुनी क्या? एक ऐसी न्यूज आई, वहां र्यूमर फैल गया गांव में, उत्तर प्रदेश के गांव में, कि आने वाले 2 दिन के बाद अगले 1 साल तक नमक ही नहीं मिलने वाला। रात को लोग कावरे बावरे हो गए, किराना दुकान फोड़ फोड़ के उसके अंदर नमक की बोरियां चुरा के भाग रहे। तुम्हें चाहिए तो वीडियो क्लिप कहीं होगी न्यूज पे, यूट्यूब पे, तो वो निकाल के भेजोगे, नमक की चोरी कर रहे हैं लोग यूपी में। व्हाई? बिकॉज दे एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी अ सीवियर शॉर्टफॉल इन द सप्लाई ऑफ सॉल्ट, यस और नो? अब नॉर्मल सब्जियां जब हम रोज जो खाना खाते हैं, तो एक बहुत कॉमन चीज हमें जो लोग रखती है वो की है प्याज, ओनियन हम ग्रेजुअली बहुत रोजाना हम ऑफन कंज्यूम करते हैं, राइट?
अचानक से मार्केट में न्यूज आती है कि बाढ़ की वजह से जितना भी ओनियन का जो प्रेजेंट ईयर का जो भी प्रोडक्शन था वो खराब होने वाला है और मार्केट में प्याज की जो सप्लाई है उसमें कमतरता आएगी। तो देयर वोंट बी अबंडेंट सप्लाई ऑफ ओनियन, देयर वोंट बी अबंडेंट सप्लाई ऑफ ओनियन। तो फिर ऐसे डेट में जब मम्मी को ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में मार्केट में प्याज नहीं मिलेगा, बहुत शॉर्टेज होगा, तो हम क्या करते हैं, अभी से प्याज लेना खरीदना शुरू कर देते हैं, जैसे लॉकडाउन में हुआ। कैसे हुआ लॉकडाउन में? और जैसे कलेक्टर बोलता था सकाळी 7 ते 11, ऐसे बस ऑन ए मार्क गेट सेट गो। वो मेरे घर के वहां तो ऐसा हाल था, सुबह 7 से 11 मैं सोचता था कि मेरे घर के सामने लॉकडाउन कब लगेगा। मेरे घर के सामने एक दिन लॉकडाउन नहीं था। लोग तो ऐसे आ रहे कि बस मोदी जी अब कल से और 1 साल बाद मार्केट ही नहीं खोलने वाले। मैं एक दिन ऐसे जो दुकान के सामने खड़ा था जैन के, और एक कस्टमर आया सुबह 7 बजे जाके, मामा है सामान जा सके। सामान में क्या? 4 डजन साबुन, 4 डजन साबुन, 5 कुंटल गेहूं, 1 कुंटल दाल, 4 कुंटल चावल। जैसे कि अब साल भर खुलने वाला ही नहीं, क्योंकि सब लोगों के दिमाग में एक ही डर है, अब लॉकडाउन हो गया, अब चीजें मिलेंगी नहीं। तुम लोगों ने भी घर में देखा होगा, घर में ला के किराना भर रहे, घर में ला के किराना भर रहे है ना। मम्मी ते उघडणार नाही, एक काम कर 5-10 मॅगीची पॅकेट आजच आणून टाक। हे ला के मैगी भर रहे, ला के मैं भी बाहर गए के ओरियो पैकेट लाओ, ओरियो बिस्किट लेके आओ, बस मैं साची चलने दो ओरियो। बाहर गए एक बार गए 1 डजन ओरियो पैकेट लाके रख देने का, बस चलते रहेगा अपना 1 डे ईच, बस चलते रह रहा अपना। तो ये ऐसा हो रहा था। ये ऐसा क्यों हो रहा है, हम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं मार्केट में? एवरीवन इज बिहेविंग सो बिकॉज एवरीवन फील्स दैट देयर माइट बी शॉर्टेज इन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू लॉकडाउन, देयर माइट बी शॉर्टेज इन द सप्लाई। तो जैसे ही सब लोगों को लग रहा है कि लॉकडाउन के वजह से मार्केट में सप्लाई का शॉर्टेज होगा, तो सभी लोग ऐसे भेड़ बकरी के जैसे बस ये खरीदना है, ये खरीदना है, ऐसे खरीदे कि बस कल कुछ किराना ही नहीं मिलेगा। हुआ है ना, सब लोगों ने तो ये देखा ही होगा, आया ना, राइट। मेरे घर के वहां तो 7 से 11 में ऐसा माहौल रहता था कि समझते थे यार कोविड बोलते सोशल डिस्टेंसिंग का तो सब ही नहीं मिलता था वहां पे, पैर रखने के लिए तक जगह नहीं थी। इतनी खतरनाक सिचुएशन मेरी लेन की थी, पूरा किराना, पूरे परभनी जिले का किराना मेरे लेन में से ही जाता है। तो पूरे परभनी जिले के लोग टूट पड़े हैं, भाई ये दो वो दो, दाल दो ये दो, तो वो जैसे बोलो 4 डझन साबुन मैंने तो उघडलं नाही, कसं आंघोळ कशी करायची? इतना लोगों के दिमाग में शॉर्टेज, इतना लोगों के दिमाग में शॉर्टेज, दे वांट टू कीप एवरीथिंग इन अबंडेंट। तो जब कभी भी लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में कोई चीज की शॉर्टेज हो जाएगी, चलो तुम्हें पता चला कि आने वाले 1 साल तक मार्केट में साबुन नहीं मिलेगी, तुम क्या करोगे? फटाफट मार्केट में जाओगे, जहां जितनी साबुन मिलती है सब उठाकर अपने घर में ले जाकर रख दोगे, 1 साल का नहाने धोने का प्रबंध करके रखोगे, हाँ या ना, राइट। और वही जैसे जैसे लॉकडाउन कूल डाउन होने लगा, जैसे जैसे मार्केट नॉर्मल की तरफ आने लगा, लोग भी नॉर्मल की तरह बिहेव करने लगे, लोग भी नॉर्मल की तरह बिहेव करने लगे। नाउ दे आर परचेसिंग की जितना उनको रिक्वायरमेंट है। तो whenever you expect that supply will fall in future, you increase the current demand. Whenever you expect कि आने वाले दिनों में किसी चीज की सप्लाई कम हो जाएगी, तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। अगर आप ये उम्मीद करते हो कि आने वाले दिनों में किसी चीज की सप्लाई बढ़ने वाली है, किसी चीज की सप्लाई बढ़ने वाली है, तो ऐसे सिनेरियो में हम उसका डिमांड कम करते हैं। जैसे कि एक सीजन से दूसरे सीजन में जाते हैं, जब अभी समझ लो प्याज का सीजन खत्म होने वाला है, तो अभी सप्लाई कम है, अभी सप्लाई कम है, तो हम क्या करते हैं, प्याज ले लेते हैं। लेकिन जैसे हमें पता चलता है कि नया जो क्रॉप है प्याज का, वो नया जो प्याज है क्रॉप का वो आएगा और मार्केट में बहुत ज्यादा प्याज का सप्लाई होने लगेगा, ज्यादा सप्लाई होगा तो और बेहतर क्वालिटी हमें मिलेगी। जब कभी भी एक एग्रीकल्चर सीजन निकलता है तो हमें लगता है कि नया प्रोडक्ट, नया चीज जो है मार्केट में, धान्य जो है मिलेगा, तो नॉर्मली मम्मी क्या करती है, नया क्रॉप जब तक नहीं आता तब तक रुकती है, और जब नया क्रॉप आता है तब वो नया क्रॉप लेने लगते हैं। तो जब हमें लगता है कि सप्लाई बढ़ने वाला है, सप्लाई बढ़ने वाला है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, डिमांड को कम करते हैं। जब हमें लगता है कि आने वाले दिनों में सप्लाई कम हो जाएगा, तो हम करंट डिमांड को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। Whenever we expect the supply to increase in future, we will decrease the demand.
and whenever we feel that supply will decrease in future, we will increase the demand. How is the relationship then? Inverse relationship. So whenever we expect the supply to rise in future, we decrease the current demand. Whenever we expect the supply to fall in future, we increase the current demand. जैसे कि अभी केस यहाँ दिए गए 100 kgs of soybean oil, rupees है, this is not kgs, this is rupee, okay, this is supply, sorry, supply है ना ये. So 100 kg सोयाबीन ऑयल का सप्लाई है मार्केट में, तो डिमांड कितनी है उसकी 10 kg. अचानक आपको पता चला है कि सोयाबीन का सप्लाई आने वाले दिनों में बढ़ के 200 किलो हो जाएगा. सो यू नो देयर विल बी अबंडेंट क्वांटिटी इन द मार्केट वेयर यू कैन इजीली गो एंड बाय. सो व्हाट विल डू, करंट डिमांड को आप 5 किलो पे लाकर कम कर लोगे. अचानक से तुम्हें पता चला है कि मार्केट में अब सोयाबीन का सप्लाई जो है वो कम होने वाला है और कम होकर 50 किलो पे आ जाएगा, तो शॉर्टेज सोयाबीन ऑयल की मार्केट में आने लगेगी. So what you will do, you will increase the current demand from 10 to 15. So this is how there are changes in the demand of a commodity due to expectations of supply. So how is the relationship in case of expectations of supply? It is inverse relationship. There is inverse relationship between expectations of supply and quantity demanded. There is direct positive relationship between expectations of income and quantity demanded. There is direct positive relationship between expectations of the price and quantity demanded. ये expectations और जो relationship है ये लिखा नहीं है, आपको जब लिखना है तब आपको ये एक सेंटेंस नीचे लिख देना, relationship कैसा है, इनवर्स है या डायरेक्ट पॉजिटिव है. So this is all we have in the expectations about the consumer. Yes, any doubt? Is everything clear? Right. See you all tomorrow. Thank you so much.